ضلع ذوب میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے موبائل فائرنگ کے تبادلے میں جوان شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے ضلع ذوب میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران سپاہی حق نواز شہید جبکہ 2 جوان زخمی ہوئے۔ مقابلے میں ایک دہشت گرد بھی مارا گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد وطن دینے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 147ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر منشن محمد علی جناح نے آنکھ کھولی تو کون جانتا تھا کہ بچہ عظیم رہنما بن کر برصغیر کے مسلمانوں کی کشتی پار لگانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور علیحدہ وطن کی باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد قائد اعظم نے اپنے شب و روز مسلمانوں کے سیاسی شعور کی بیداری کے لیے وقف کر دیے۔ بالآخر ان کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کا علیحدہ وطن کا خواب پورا ہوا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش آج انتہائی عقیدت و احترام اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں بابائے قوم کے مزار پہ تعینات گارڈز کی تبدیلی کی پرپکار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کینڈیڈیٹس نے مزار قائد کی سیکورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نسیم تھے، جنہوں نے گارڈ کا معائنہ کیا۔ اعزازی گارڈز نے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نسیم کو جنرل سلام پیش کیا اور انہوں نے مہمانوں کی کتاب پر تاثرات بھی درج کیے۔ گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ اور کمشنر کراچی مزار قائد پر حاضری دیں گے، جبکہ تینوں افواج کے نمائندے ڈی جی رینجرز بھی مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کرسمس کا تہوار محبت اور اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ کرسمس کے موقع پر جاری کیے گئے بیان پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سالمیت میں مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات ہیں۔ انہوں نے کرسمس پر پوری قوم کی طرف سے پاکستان کی مسیحی برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ دنیا بھر کی طرح ملک کے مختلف شہروں میں مسیحی برادری نے اپنا تہوار بھرپور عقیدت و احترام سے منانے کے لیے کرسمس ٹری سجا لی۔ گرجا گھروں پر چراغاں، عبادات اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں مسیحی برادری نے گلی کوچوں کی سجاوٹ کے ساتھ گھروں میں کرسمس ٹری بھی سجا لی۔ کراچی میں گرجا گھروں پر چراغاں کر کے عبادات اور دعائیہ تقریب منعقد کی جائیں گی۔ لاہور میں سانتا کلاس نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ پشاور میں مسیحی برادری نے گھروں کو خوبصورتی سے سجا لیا۔ راولپنڈی میں بچے، خواتین، مرد سب کرسمس منانے کے لیے پرجوش۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد کے فرد مواد پر عمل پیرا ہو کر ملک کو مستحکم کریں گے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ آج قائد کے جمہوری اقدار کے ویژن کو برقرار رکھنے کا عہد کریں گے۔ خواتین کو قومی ادارے میں شامل کرنے کے لیے قائد کے فرمان پر عمل درآمد کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم قائد کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ قائد اعظم کی جدوجہد کی بدولت آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمان برصغیر کو حقوق کا صحیح معنوں میں ادراک کروایا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانس نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو غریبوں اور جنگ سے متاثرہ افراد کا خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ کرسمس کے موقع پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو یاد کرتے ہوئے پوپ فرانس نے اپنے خطاب میں دولت اور طاقت کے زور پر کمزوروں کو دبانے کی سرزنش کی۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں پوپ کے روایتی کرسمس ڈے کے خطاب کو سننے کے لیے تقریباً 7,000 افراد نے شرکت کی، جن میں سیاح اور زائرین بھی شامل تھے۔ پوپ نے شرکاء کو حضرت عیسیٰ کی عاجزانہ زندگی سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کے دکھوں پر مرہم رکھا۔ پوری دنیا میں گزشتہ کچھ دہائیوں میں مذہبی عدم برداشت کی لہر نے زور پکڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ تہوار آفاقی محبت، اخوت اور احسان کا درس دیتا ہے۔
پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ساؤتھ ریجن کے چیئرمین غلام محمد پٹھان کا کہنا ہے کہ پولٹری انڈسٹری کے پاس صرف 7 دن کا فیڈ اسٹاک ہے۔ ایک بیان میں غلام محمد پٹھان نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بندرگاہ پر سویابین کے جہازوں کا کلیئرنس نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے پولٹری کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ 1 کلو مرغی کا گوشت ایک ہفتے میں 150 روپے بڑھ چکا ہے۔ جہازوں کی کلیئرنس میں تاخیر سے پولٹری انڈسٹری میں بحران ہوگا۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے متعدد علاقے گہری دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ بہاولپور کے قریب ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ حد نگاہ شدید متاثر ہونے سے مختلف موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M1 پشاور تا اسلام آباد، جبکہ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 بھی دھند اور حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث فیصلہ آباد تا عبد الحکیم، جبکہ موٹر وے M5 بھی شیر شاہ سے روہڑی تک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ لاہور میں سردی کی لہر میں اضافے کے ساتھ ہی علاقوں میں گیس پریشر بھی کمی سے گھریلو صارفین شدید پریشان ہو گئے۔ LPG اور لکڑی کا استعمال بڑھ گیا۔ ہوٹلوں اور تندور والے بھی گیس پریشر میں کمی سے پریشان ہیں۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ، انارکلی، رنگ محل، نسبت روڈ، گوال منڈی، فیروزپور روڈ، سبزہ زار، گڑی شاؤ، گرین ٹاؤن، ہربنسپورہ، سمن آباد، اشراق، گلشن رافی، چوبرچی اور مزنگ سمیت دوسرے علاقے گیس پریشر میں کمی سے زیادہ متاثر ہیں۔ قومی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3749 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 15 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.40% رہی۔ اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 16 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہنور نیوز اور میں ہوں ذکی ارشاد۔ ایڈنس آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اب سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ضلع زوب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں جوان شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع زوب میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران سپاہی حق نواز شہید ہو گئے، جبکہ 2 جوان زخمی ہوئے۔ مقابلے میں ایک دہشت گرد بھی مارا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردوں کی سہولت کاروں نے بھی فائرنگ کی۔ علاقے میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کو داخلی راستوں کے استعمال سے روکنا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد وطن دینے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 147ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن محمد علی جناح نے آنکھ کھولی تو کون جانتا تھا کہ یہ بچہ عظیم رہنما بن کر برصغیر کے مسلمانوں کو کشتی پال لگانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسہ اسلام سے حاصل کی، جبکہ میٹرک کا امتحان جامعہ بمبئی سے پاس کیا۔ بعضاں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ 1895 میں انہوں نے لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کر لی اور بمبئی واپس آ کر باقاعدہ طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ 1896 میں محمد علی جناح نے سیاسی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے انڈین نیشنل کانگریس میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور علیحدہ وطن کی باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد قائد اعظم نے اپنے شب و روز مسلمانوں کی سیاسی شعور کی بیداری کے لیے وقف کر دیا ہے۔ بالآخر ان کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کا علیحدہ وطن کا خواب پورا ہوا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ دنیا بھر کی طرح ملک کے مختلف شہروں میں مسیحی برادری نے اپنا تہوار بھرپور عقیدت و احترام سے منانے کے لیے کرسمس ٹری سجا لی۔ گرجا گھروں پر چراغاں، عبادت اور دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
اسلام آباد میں مسیحی برادری نے گلی کوچوں کی سجاوٹ کے ساتھ گھروں میں کرسمس ٹرے بھی سجائی۔ کراچی میں گرجا گھروں پر چراغاں کر کے عبادات اور دعائیہ تقریب منعقد کی جائیں گی۔ لاہور میں سانتا کلاس نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ پشاور میں مسیحی برادری نے گھروں کو خوبصورتی سے سجا لیا۔ راولپنڈی میں بچے، خواتین، مرد سب کرسمس منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی مناسبت سے کوئٹہ کے ایک نجی تعلیمی ادارے میں کرسمس تقریب میں قومی پرچم اٹھائے۔ سانتا کلاس نے مذہبی گیت گا کر ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش انتہائی عقیدت و احترام اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں بابا قوم کے مزار پر تعینات گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے مزار قائد کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نسیم تھے۔ انہوں نے گارڈز کا معائنہ کیا۔ اعزازی گارڈز نے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نسیم کو جنرل سلام پیش کیا۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب پر تاثرات بھی درج کیے۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے کیڈٹس گارڈز کے فرائض پاکستان آرمی کے کیڈٹس کے حوالے کیے گئے۔ گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ اور کمشنر کراچی مزار قائد پر حاضری دیں گے، جبکہ تینوں افواج کے نمائندے ڈی جی رینجرز بھی مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ قائد کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب سال میں 3 بار 14 اگست، 6 ستمبر اور 25 دسمبر کو منعقد ہوتی ہے۔ تقریب میں پاک نیوی، پاکستان ایئر فورس اور پی ایم اے کاکول کے کیڈٹس بالترتیب ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ملک کو مستحکم کریں گے۔ صدر عارف علوی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے 146ویں یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج قائد کے جمہوری اقتدار کے ویژن کو برقرار رکھنے کا عہد کریں۔ خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے قائد کے فرمان پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط پر عمل کرتے ہوئے خوشحالی اور ترقی کی طرف سفر کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں گے اور قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ملک کو مستحکم کریں گے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ قائد اعظم کشمیر پاکستان کی شاہ رخ ہے۔ کوئی قوم اپنے شاہ رخ کو دشمن کے قبضے میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم قائد کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ قوم قائد کا یوم پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ قائد اعظم کی جدوجہد کی بدولت آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم نے مسلمان برصغیر کو حقوق کا صحیح معنوں میں ادراک کروایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد کی جدوجہد کا مقصد ایسی ریاست کا بھی قیام تھا کہ جس میں اقلیتیں بغیر کسی خوف و خطر اپنی زندگی گزاریں۔ بھارت انتہا پسند سوچ کی وجہ سے بطور ریاست اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام ہے۔ قائد اعظم کی دور اندیشی اور دو قومی نظریے کے لیے دی گئی دلیلوں کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ والدین اور اساتذہ نسل نو کو قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے دیگر قائدین کی زندگیوں کے بارے میں آگاہی فراہم کریں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تمام نااہل ایک اہل کو نااہل کرانے میں لگے ہوئے ہیں جس کے عزائم منفی ہیں، وہ ناکام ہو گئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ عمران کے فیصلوں کو عوام میں پذیرائی ملتی ہے اور پی ڈی ایم کو رسوائی۔ بلاول ایف اے ٹی ایف کے اجلاس سے بائیکاٹ کر گئے تھے اور وہ کہتا ہے کہ ایف ٹی ایف میں نے نکالا۔ عدالت میں کیس گورنر کے نوٹیفیکیشن کا تھا، اسمبلی توڑنے اور جوڑنے کا نہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا ایک اور ٹویٹ میں کہنا تھا کہ جب عوامی رائے عامہ کا احترام نہیں ہوتا تو جمہوریت امریت ہوتی ہے، امریت نہیں ہوتی ہے۔ قانون میں خودکشی کی ناکام کوشش سے سزا معاف کر دی گئی۔ سابق وزیر نے مزید کہا کہ آئین موم کی ناک بن گیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے۔ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں، ممبروں کی منڈی لگی ہے۔ وزراء کی تعداد 77 ہے، 22 ہے، محکمے ہیں، 50 کروڑ تک کرپشن حلال اور چھوٹی چوری حرام ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत और अखुवत का पैगाम देता है। क्रिसमस के मौके पर जारी किए गए बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सालमियत में मसीही बरादरी की गिरां कदर खिदमत हैं। उन्होंने क्रिसमस पर पूरी कौम की तरफ से पाकिस्तान की मसीही बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। और वफाकी वजीर शाजिया मरी का क्रिसमस के त्यौहार पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। क्रिसमस के त्यौहार पर मैं तमाम मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से मैरी क्रिसमस कहती हूँ। शाजिया मरी ने कहा कि 25 दिसंबर बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के मौके पर पूरी कौम के दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। आइन हम सब को मिलकर पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म के मुताबिक गुजारने की तलकीन करता है, ज्यादा तरक्की पसंद ममालिक बनाएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। क्रिसमस के मौके पर तमाम मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से मैरी क्रिसमस और 25 दिसंबर को ही बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के मौके पर भी पूरी कौम को मुबारक। आइए मिलकर पाकिस्तान को एक ज्यादा इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव मुल्क बनाएं, कायद आज़म के ख्वाब के मुताबिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि अदलिया अपना काम करे, फौज की मुनज़्ज़म फोर्स को माफियाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा कोई और तरीका नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बुरहान से निकालने के लिए नई तजावीज़ दे दी। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि फौज तगड़ा इदारा है, इसकी ज़रूरत तो पड़नी है। अगर ISI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। PTI चेयरमैन ने यह भी कहा कि क्या ना इंसाफी को इसलिए कबूल कर ले कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी। अगर इस मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि PDM या एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तो सदर मुमलकत ही करते हैं, उनका किसी से राब्ता नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी असद ने कहा कि कायद की सालगिरह के दिन ये अहद करें कि जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने जदोजहद की, एक हकीकी तौर पर आज़ाद जमहूरी मुल्क बने, जहां कानून की हुक्मरानी हो, फैसलों का इख्तियार अवाम का हो। इसके लिए जदोजहद जारी रखेंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद पठान का कहना है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास सिर्फ 7 दिन का फीड स्टॉक है। एक बयान में गुलाम मोहम्मद पठान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से बंदरगाह पर सोयाबीन के जहाजों को क्लीयरेंस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पोल्ट्री का बुरहान पैदा होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि दरामदी सोयाबीन के जहाज 12 अक्टूबर से बंदरगाह पर खड़े हैं, जिनमें 100 अरब रुपए मालियत का सोयाबीन है। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन का मजीद कहना है कि हुकूमत की जानब से बंदरगाह पर सोयाबीन के जहाजों को क्लियरेंस नहीं मिल रही। उनका यह भी कहना है कि 1 किलो मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 150 रुपए बढ़ चुका है। जहाजों की क्लियरेंस में ताखीर से पोल्ट्री इंडस्ट्री में बुरहान होगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुतअद्दिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। बहावलपुर के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जहां बहक हो गए, जबकि हद नगाह शदीद मुतासर होने से मुख्तलिफ मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पिशावर ता इस्लामाबाद, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M4 भी धुंध और हद नगाह मुतासर होने के बायस फैसलाबाद ता अब्दुल हकीम, जबकि मोटरवे M5 भी शेर शाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दारखाना तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, जबकि सवात एक्सप्रेस वे को भी कर्नल शेर खां का तक इस्माइल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानब शदीद धुंध के बायस बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया टूल प्लाजा के करीब वैन और ट्रॉलर के दरमियान टक्कर के नतीजे में ड्राइवर समेत 3 अफराद जहां बहक हो गए। लाहौर में सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही कई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी से घरेलू सार्फिन शदीद परेशान हो गए। LPG और लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया। होटलों और तंदूर वाले गैस प्रेशर में कमी से परेशान हैं। लाहौर के इलाके भाटी गेट, इनारकली, रंग महल, निस्बत रोड, गवाल मंडी, फिरोजपुर रोड, सब्जाजार, गड़ी शौक, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा, समनाबाद, इशरा, गुलशन रावी, चौबरजी और मुजंग समेत दीगर इलाके गैस प्रेशर में कमी से ज्यादा मुतासर हैं। दूसरी जानब तर्जमान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कहा है कि तमाम सेक्टर को गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी का कोई मसला दरपेश नहीं। टील एंड वाल
والے علاقوں کے صارفین کے لیے LPG سلنڈر متعارف کرائے گئے ہیں۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ گیس کمپریسر کے استعمال کی وجہ سے بعض علاقوں میں پریشر کم ہے، گیس کے کمپریسر استعمال کرنے والے صارفین کا کنیکشن منقطع کر دیا جائے گا۔ سندھ کے ضلع دادو کے مختلف علاقوں میں اور اطراف میں ملیریا وبا کی صورت اختیار کر گیا۔ دادو کے گوٹ بکھیر جمالی اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ملیریا کے وار جاری ہیں۔ گوٹ بکھیر جمالی میں ملیریا سے ایک ہی گھر کے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ مقامی افراد کا دعویٰ ہے کہ 3 ماہ میں 40 سے زائد افراد ملیریا سے انتقال کر چکے ہیں۔ ترک بحریہ کے جہاز برگاز کی کراچی بندرگاہ پر آمد پر پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور ترکیہ کے سفارتی عملے نے جہاز کا استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین پیشہ ورانہ تعلقات کا فروغ ہے۔ دورے کے اختتام پر دونوں بحری افواج کے مابین مشترکہ مشقوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ترکیہ کے بحری جہاز کے دورے سے خطے میں قیام امن کی مشترکہ کاوشوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتائیں کہ ترک بحریہ کے جہاز برگزادہ کی کراچی بندرگاہ آمد پر پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور ترکیہ کے سفارتی عملے نے جہاز کا استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین پیشہ ورانہ تعلقات کا فروغ ہے۔ دورے کے اختتام پر دونوں بحری افواج کے مابین مشترکہ مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ ترکیہ کے بحری جہاز کے دورے سے خطے میں قیام امن کی مشترکہ کاوشوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ قومی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3749 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 15 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.40% رہی۔ اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 16 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی میں آج دسمبر کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی اور درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں آ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا آج کم سے کم درجہ حرارت 9.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ 2 روز تک بلائی اور وسطی سندھ میں رات اور دن کے وقت دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں مختلف علاقوں میں موسم جزوی اور ابر آلود رہے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ یورپی یونین نے افغانستان میں NGOs کے لیے کام کرنے والی خواتین پر پابندی لگا دی کی مذمت کر دی، اور بیان میں یورپی یونین فارن پالیسی چیف جوزف بوریل کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ پابندی کا افغانستان کے لیے امداد پر کیا اثر پڑے گا۔ طالبان نے افغانستان میں فلاحی تنظیموں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی لگا دی ہے اور تمام مقامی اور غیر ملکی تنظیموں کو خواتین ملازمین کو کام پر نہ بلانے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو غریبوں اور جنگ سے متاثرہ افراد کا خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ کرسمس کے موقع پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو یاد کرتے ہوئے پوپ فرانسس نے اپنے خطاب میں دولت اور طاقت کے زور پہ کمزوروں کو دبانے کی سرزنش کی۔ سینٹ پیٹرز اسکور میں پوپ کے روایتی کرسمس ڈے کے خطاب کو سننے کے لیے تقریباً 7,000 افراد نے شرکت کی، جن میں سیاح اور زائرین بھی شامل تھے۔ پوپ نے شرکاء کو حضرت عیسیٰ کی عاجزانہ زندگی سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی۔ کرسمس کا دن خطاب پر پوپ کو عالمی سامعین کی توجہ دینا بھی جاری چھوٹے بڑے تنازعات کی طرف متوجہ کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ اس پر بھی انہوں نے یوکرین جنگ اور شام اور عراق کے غیر معمولی بحران پر افسوس کا اظہار کیا۔ کوٹ غلام محمد کے شہر میل سٹاپ پر آٹا 5,000 فی من، جبکہ گاؤں گھوٹوں میں آٹا 5,200 فی من فروخت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نوید احمد گرچانی سے۔ جی نوید، کیا تفصیلات ہیں؟ کوٹ غلام محمد کے نوائی شہر 10 مل اسٹاپ پر، جہاں پر جو غریب طبقہ ہے سخت پریشان ہے، جو آتا ہے 140 سے 150 روپے کلو کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے جو یہاں پر جو غریب طبقہ ہے احتجاجی مظاہرہ کیا، آئیے تفصیل لیتے ہیں انہوں کا کیا کہنا ہے۔
गरीब आदमी है, 130-40 रुपये किलो आटा दे रहे हैं। यहाँ कोई हुकूमत का कोई इंतजाम नहीं है, कोई यूनिटी स्टोर नहीं है, यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। दुकानदार अपनी मर्जी दे रहे हैं कि वो करें, हमें ऊपर से महंगा मिल रहा है। यहाँ गरीब आदमी भूख मर रहे हैं, इतने रोटी खा रहे हैं, इतने भूख मर रहे जा रहे हैं। 400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा आटा लेके जाए, घर में कोई सामान लेकर जाए। क्या किलो दे रहे हैं? यहाँ पर 130-40 रुपये किलो दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारे को ऊपर से महंगा मिल रहा है। दुकानदार का ये कहना है। क्या करना चाहते हो? हम ये कहना चाहिए हुकूमत को हमारा इंतजाम करे, कोई बड़े। मुल्क भर की तरह तहसील मेलसी में 25 दिसंबर का दिन यौम कायद बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंतहाई अहमियत का दिन समझा जाता है। पाकिस्तान की आवाम के लिए बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का हर पहलू एक जिंदा और रोशन मिसाल है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख कामरान जैन से। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। अगर बात की जाए 25 दिसंबर के हवाले से, आज का दिन 25 दिसंबर का दिन यौम कायद के हवाले से मनाया जाता है। इस वक्त मैं यहाँ पर मेलसी के नवाही इलाके दो कोटा मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते इस हवाले से। जी क्या बताएंगे आज के दिन के हवाले से आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उसका यौम पैदाइश है, तो इस हवाले से जो है ना प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद जो हैं 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे, तो उन्होंने हमें आज़ादी का एक जज्बा दिया, जोश दिया, जिस हवाले से आज हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और एक आज़ाद मज़हब के साथ दो कौमी नज़रिया भी दिया उन्होंने, जिस नज़रिए पर आज हम इंशाअल्लाह आबाद शाद हैं। और जी नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि आज का दिन जो है बड़ी ही अहमियत का हामिल है। आज का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंतहाई अहम समझा जाता है। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज कायद-ए-आज़म की यौम विलादत का दिन है और वो हमारे बहुत बड़े एक लीडर और एक रहनुमा के तौर पर साबित हुए। आज उनकी पैदाइश का दिन है, तो हम हैसियत पाकिस्तानी हमें यह दिन बहुत जोश व खरोश से मनाना चाहिए और जोश व खरोश से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उनके तमाम पहलुओं पर नज़र डालकर उनके मुताबिक और उनके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपने मुल्क को तरक्की के लिए दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है आज का दिन जो है बड़ा ही मुक़द्दस दिन है, पाकिस्तान के लिए बड़ा ही अहमियत का दिन है। हमें आज़ादी जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से मिली, यूँ मिली हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान ए कायद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MP जावेद अकबर ढल्लू की जानिब से अंदर बरादरी की ज़राई ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे की कोशिश मज़ामत पर आज़ादाना फायरिंग कर दी गई। एक शख्स जख्मी हो गया, मुतासरीन का एहतजाज जारी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद से। जी शाहिद, तफसीला से आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती रैस छल्लू में, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो है फायरिंग का वाक़या पेश आया है और साबिक MP जावेद अकबर ढिल्लू के जो अहलकार हैं उनकी तरफ से जो है ये फायरिंग की गई है। और यहाँ पर बताया जाता है मुबैना तौर पर ज़मीन जो फ्रंट सब्जी मंडी का फ्रंट आ रहा है उस पर कब्जे करने की कोशिश की जा रही है। जी क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हाँ जनाब, हमारा रकबा वहाँ गुजार कर रहे जाए और कब्जा भी हमारे पास है, कब्जा करने की कोशिश करता है। हमारा खाल 10 एकड़ इसने तोड़ दिया है, सरकारी खाल। हम एक्शन के पास कहे, हम SDO को बुला के यहाँ मौके पे ले आए, अभी कोई हमारे। अच्छा, फायरिंग हुई, क्या नुकसान हुआ है? फायरिंग हुई है, नुकसान तो नहीं हुआ, बहरहाल एक आदमी जख्मी हुआ है, उसको चोटियां हैं, खून बहुत निकला है, उसको हमने हॉस्पिटल भेजा, सरकारी हॉस्पिटल। जी आप क्या कहेंगे? ये जावेद अकबर ढिल्लू जो है ना, ये न्यू सब्जी मंडी बना रहा है। हमारा जो फ्रंट हमारा है ये पीछे है, ये हमारे रकबे पे कोशिश कर रहा है फ्रंट पे कि मैं इधर से गेट लाऊं और इसे इधर से हमारे रकबे पे जो खाल सरकारी था वो भी तोड़ दिया है। हमने एक्शन को SDO को भी बुलवाया, फसल भी उजाड़ी गई है, फसल भी उजाड़ी गई है और ये कब्जे की कोशिश कर रहा है। हमारी अपील है वजीर आजम पाकिस्तान साहब, परवेज इलाही साहब, वजीर आला पंजाब साहब, IG साहब के ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जैसे कि आपने सुना कि साबिक MP की तरफ से जो है कब्जे की कोशिश की गई है। और अब आपको बताएं कि कॉटनी के इलाके बाबूजाई में फायरिंग, गोली लगने से एक ही खानदान के खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इतला मसूल होने पर रेस्क्यू मेडिकल टीम और एम्बुलेंस जाए हादसा पे पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। रेस्क्यू मेडिकल टीम ने जहाँ बहक अफराद को TDH कॉटलिंग मुंतकिल कर दिया। जहाँ बहक अफराद में 30 साल शाहरूम, उसकी माँ और बहन शामिल हैं। यहाँ पे आपको बताएं कि कॉटलिंग के इलाके में फायरिंग का मामला
कॉटलिंग के इलाके बाबूजई में फायरिंग, गोली लगने से एक ही खानदान की खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तला मसूल होने पर रेस्क्यू मेडिकल टीम और एम्बुलेंस जाए हादसा पे पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। रेस्क्यू मेडिकल टीम ने जाँ बहक अफराद को TDH कॉटलिंग मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद में 30 साल शाहरूम, उसकी माँ और बहन शामिल हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कॉटलिंग के हवाले से फायरिंग का मामला। आज 25 दिसंबर का दिन मुल्क में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश और उनके इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के रहनुमा असूलों को बरकरार रखने के अहद के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ताहिर खान इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर शाहीन के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी 25 दिसंबर का दिन बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ताहिर खान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस खुशी के मौके पर उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान का एक ख्वाब देखा और एक मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए अलहदा रियासत बनाई, और ये पाकिस्तान ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की बुनियाद पर बना है। हमें कायद-ए-आज़म के जो ये फरमूदात हैं इन पर अमल पैरा होना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए जहाँ जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क पाकिस्तान बना है। तो जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था जो कायद का फरमान है ईमान। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, हमारे साथ रहिएगा। और अब आपको बताएं कि मटियारी में साईं सरकार के तालीमी एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 मटियारी का मनसूबा 3 साल में मुकम्मल होना था, मगर 15 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पे मौजूद हमारे नुमाइंदे अली फैजान से। जी अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साईं सरकार की तालीमी एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। साल 2009 में बनने वाले हाई स्कूल नंबर 2 जो कि ताहाल नहीं बन सका है, जिसकी वजह से मटियारी के जो असातिज़ात और स्टूडेंट है वो सख्त परेशानियों से दो चार है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है स्कूल बनने से पहले ही जो दीवारें हैं वो उसमें दरारें पड़ गई है, जो ज़मीन है वो बैठ गई है, जिसकी वजह से स्कूल जो है खोलने से पहले ही बंद पड़ा है। यहाँ पर जो है बकरी और जो भैंसें हैं उनका बाड़ा बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ जो है यहाँ के जो सिविल सोसाइटी से जब हमारी बात हुई, उनको यही कहना है कि ये जो स्कूल है जो वो साल 2009 में बनना था, लेकिन ताहाल जो है नहीं बन सका है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। मटियारी के स्टूडेंट ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेनेटर रुबीना खालिद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमी और मुल्की खारजा पॉलिसी के हवाले से कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना था कि तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैद सुलेमानी, बताइएगा। मौजूद हैं सेनेटर रुबीना, उनसे बात करते हैं कि आज के कन्वेंशन के हवाले से वो क्या पैगाम दें। आज का कन्वेंशन जो है हमारी एक नाराज़ कारकुन थे और पार्टी से वो वापस उन्होंने शमूलियत की है, सलीम शाह साहब, उनकी शमूलियत के सिलसिले में ये जो है प्रोग्राम है आज। और माशाल्लाह से आपने देखा कि पिछले 9 साल से हमारी यहाँ हुकूमत नहीं रही। हम लोगों को कुछ सूबाई हुकूमत के लेवल पे कुछ दे नहीं सके, लेकिन लोगों का जोशो खरोश उसी तरीके से है, लोगों की भुट्टो से मोहब्बत उसी तरीके से है। और जो हमारा नारा है कि कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, वो आपने देख लिया है कि भुट्टो लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में, लोगों की सोच में ज़िंदा है। तंजीम साजी के हवाले से कुछ बता दें। हम तंजीम साजी के पर भी काम कर रहे हैं। हमारी डिविजनल सदर शाइस्ता साहिबा यहाँ पे हैं, हमारी मानसेरा की सदर साहिबा यहाँ पर हैं, और ये हमारी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो भी हज़ारा डिवीज़न से ही है। तो ये मिल के ये सारी ख़वातीन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर मेजॉरिटी की जमात बन के उभरेगी, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा में और हज़ारा में ख़ास करके। आप सेनेटर भी हैं, आप पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है और आप देखेंगे कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने फिर से जो है हमारी जो खारजा पॉलिसी को जिस तरह कामयाबी की तरफ लेकर चल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला हो गया था पिछले 4 सालों में। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी सर्दी और धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक एजुकेशन इंचार्ज यूनिट इंस्पेक्टर शाहजिया रमजान ने कहा कि ड्राइवर हजरात आवाम को धुंध के हवाले से लेक्चर दे रहे हैं। धुंध के दिनों में और ओवर स्पीड ना किया जाए, फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। पेश है बहावलपुर से फैसल जावेद खान की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में सर्दी और धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी में भी शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक एजुकेशन इंचार्ज यूनिट इंस्पेक्टर शाहजिया रमजान ने कहा कि ड्राइवर हजरात और आवाम को धुंध के हवाले से भी लेक्चर दे रहे हैं। धुंध के दिनों में ओवर स्पीड न करें, फोक लाइट का इस्तेमाल करें, गाड़ी को लेन में चलाएं ताकि हादसा से बचा जा सके। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट इंचार्ज इंस्पेक्टर शाहजिया रमजान ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जी धुंध ने ना सिर्फ बहावलपुर पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा कॉज बना हुआ है हादसात का। हादसात की जो रेशो है वो इंक्रीज़ हुई है। इस मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर ने मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ जनरल बस स्टैंड पर ड्राइवर्स को जाके लेक्चर दिए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर के ऑफिस में ट्रांसपोर्टर्स हजरात को बुलाकर सख्ती से कहा गया है कि वो अपने ड्राइवर्स को ताकीद करें कि ओवर स्पीड ना करें और फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगी तमाम पब्लिक को कि वो गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करें। धुंध के हवाले से जहाँ पर मैं जनरल पब्लिक और ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं, वहाँ पर स्लो मूविंग है, वो रिफ्लेक्टर जो है वो इस्तेमाल नहीं करते कि पीछे आने वाली ट्रैफिक को आइडिया ही नहीं होता कि आगे कोई स्लो मूविंग जा रही है जो हादसात का सबब बन रही है। तो जो भी स्लो मूविंग गाड़ियाँ हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर खुद भी रिफ्लेक्टिंग स्टिकर जो है वो पेस्ट कर रही हैं। तो जहाँ जहाँ पर हम स्टिकर्स नहीं लगा सके, ये जो हमने कैंपेन चलाई हुई है, वहाँ पर तमाम शहरियों से, तमाम ड्राइवर हजरात से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो फोग लाइट्स और रिफ्लेक्टिंग स्टिकर का इस्तेमाल करें ताकि इस जो धुंध की वजह से जो होने वाले हादसात हैं इसको हम कंट्रोल कर सकें। और आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर मुल्क भर के गिरजाघरों में तकरीब जारी हैं, जहां मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई हैं। इस हवाले से गिरजाघरों, मोहल्लों, शॉपिंग मॉल्स को खूबसूरती से सजाया गया और मसीही अफराद ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। क्रिसमस के मौके पर सदर आरिफ अलवी ने खसूसी पैगाम में मसीही अवाम को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी लोगों में मसीही अफराद की खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत ने मुल्क भर के तमाम मसीही शहरियों को खुशगवार और पुरअमन क्रिसमस की मुबारकबाद दी। विक्टन में पोप फ्रांस ने क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा कि बरतानवी शाही ख़ानदान ने भी क्रिसमस की रवायती तकरीब में शिरकत की। क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में तकरीब और मुकाबले जारी हैं। सेवन स्टार प्रेस क्लब फिरोज भट्टू और प्रेस क्लब फिरोज भट्टू के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज भट्टू ने जीत ली, जिसमें 7 स्टार प्रेस क्लब के ज़हीर 120 रन से नुमाया रहे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, आगाह कीजिएगा। 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज भटवा और प्रेस क्लब फिरोज भटवा के दरमियान जो 3 मैचों की सीरीज खेली गई, वो 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज भटवा ने 2-1 से जो है वो विन कर ली। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन 7 स्टार प्रेस क्लब, उनसे जानते हैं कि उनका इस सीरीज और इस मैच के बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज भटवा और फिरोज भटवा प्रेस क्लब के दरमियान ये 3-1 की सीरीज खेली जा रही थी, जिसमें फिरोज भटवा प्रेस क्लब ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 198 रन का हदफ दिया, जो कि 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज भटवा के ओपनर बैट्समैन ज़हीर अब्बास भट्टू और सजाद अख्तर संधू साहब ने अच्छा खेल पेश करते हुए 130 रन तक मैच को लेके गए। उसके बाद इनकी ओपनरशिप टूटी, बाद में बाकी टीम ने भी बहुत अच्छा खेल पेश किया और 198 रन का हदफ बआसानी अचीव कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्टार प्रेस क्लब हमेशा सहाफत में भी नुमाया रहा है और आज क्रिकेट के मैदान में भी 7 स्टार प्रेस क्लब ने फिरोज भटवा प्रेस क्लब को शिकस्त से 2-4 किया। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना था कि 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज भटवा ने ये जो मैच है वो बआसानी जीत लिया और इसके साथ जो है सीरीज भी जीत ली। और इस ताहरी वेलफेयर हाला न्यू की जानब से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया।
कैंप में मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर डॉक्टरों ने 1000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त मुआयना करके अद्वियात फराहम की। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अमजद। जी अमजद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाला शहर में। यहाँ पर जो है ताहिरी वेलफेयर हाला न्यू की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाल किया है, जिसमें गरीब मरीजों को मुफ्त में दवाइयाँ दी जा रही है और उनका चेकअप किया जा रहा है। मजीद इस बारे में जानते हैं यहाँ मरीजों से, डॉक्टर से, उनका इस बारे में क्या कहना है? मोहल्लों से, पहाड़ों से ये लोग आ रहे हैं, गरीब मुफलिस बेचारे, जिनको अभी देखें आप कितनी दवाइयाँ भी महंगे हो गई हैं और इलाज जैसे ना बोझ को हो रहा है। तो हमने इस सिलसिले में अपने मुर्शिद मुरब्बी के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरी कैंप का इनेकाद किया हुआ है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है, ये हार्ट का है, न्यूरो की भी सर्जन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर नमूने से इलाज हो रहा है और हम इनको सिर्फ इलाज को साथ साथ हम इनको मुफ्त दवाइयाँ भी दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है, इससे मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा और यहाँ पे जिस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता हम उसको रेफ़र भी कर सकते हैं कराची या हैदराबाद, ताकि वहाँ जाके वो इस चीज़ का बेहतर तरीके से इलाज करा सके ना। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल नहीं है, वरना तो लोगों को ये नहीं पता कि हमें किस तरह से ट्रीटमेंट इनिशिएट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको मेडिसिन की या डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है और ये ऐसे कैंप लगने चाहिए और इनकी जो ये जमात है इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक देखेंगे तो मोस्टली जो है RTI, जिसमें सांस की तकलीफ है, दमा है, खांसी है वगैरह, उनको दवाइयाँ मैंने लिख के दी हैं तो यहाँ से ही मिल रही हैं सारी। मैं तो कहता हूँ ये कार्य खैर का काम जो है इनका हाथ बटाना चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए कि आइंदे भी इस तरह के सिलसिले जारी रहे और जो गरीब जो हमारा नादिर तबका। खबरें और भी हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ, जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। टेलीफोन नंबर 923257864400। ख्यालात और अल्फाज का कीमती सरमाया, नजरियात से अपने हम सब को जगाया, पूरी कौम को उसूलों पर चलना सिखाया, एक अजीम रहनुमा। अवाम कुछ कहती है, सियासतदान कुछ कहते हैं। देखना यह है कि कानून क्या कहता है। फर्क नहीं पड़ता मजलिस शूरा क्या कहती है। फर्क नहीं पड़ता कि वजीर क्या कहता है। फर्क नहीं पड़ता अवाम क्या कहते हैं, पर फर्क पड़ता है कि कानून क्या कहता है। देखिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है, जुमे की रात 7:05 पर। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ, जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। टेलीफोन नंबर 923257864400। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हेड ऑफिस में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के हवाले से केक काटा गया। केक काटने की तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PTC अब्दुल क्यूम, वाइस चेयरमैन ओन सादिक, DGM इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात मोहम्मद आसम राजा की इस रिपोर्ट में।
पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हेड ऑफिस में कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह के यौम विलादत पर केक काटा गया, जिसमें वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन सादिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल कयूम, डीजीएम इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन ओन सादिक ने कहा कि पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है। हमारे आबाओ इजदाद ने बड़ी कुर्बानियां देकर मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक जदीद फलाही रियासत बनाने की बुनियाद रखी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल कयूम का कहना था कि पाकिस्तान का कयाम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूलों की अमली शक्ल है। कायदे आजम ने हमें एक अजीम मुल्क दिया है और इसको अजीम तर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करना है तो हमें कायदे आजम की तालीमात पर अमल पैरा। अब खबर शामिल करें लाहौर से, जहां पर एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आने वाले मुसाफिर से लाखों रुपए मालियत के लैपटॉप बरामद कर लिए गए। जिशान नामी शख्स गोल्फ एरिया लाइन से लाहौर आया, चेकिंग के दौरान जिससे लाखों रुपए मालियत के लैपटॉप कस्टम हुकाम ने कब्जे में ले लिए। कलेक्टर कस्टम असद रिजवी की एसी एयरपोर्ट सारा बतूल और उनके स्टाफ को शाबाश। क्रिसमस डे के मौके पर डीसी लाहौर मोहम्मद अली कैथेड्रल चर्च और रीगल चौक पर वाक़िया चर्च का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा और दीगर भी हमरा थे। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। क्रिसमस डे के मौका पर डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने कैथेड्रल चर्च और रीगल चौक पर वाक़िया चर्च का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा और दीगर भी हमरा थे। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने क्रिसमस कम्युनिटी के त्यौहार पर कम्युनिटी के हमरा मिलकर केक काटा। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने चर्चिज इंतजामिया से मुलाकात की और इंतजामात के मुतालिक दरियाफ्त किया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने कम्युनिटी बरादरी में आइसक्रीम भी तकसीम की, तहाइफ भी तकसीम किए गए और मिठाई भी तकसीम की गई। मसीही बरादरी को क्रिसमस डे की दिली मुबारकबाद दी। डीसी लाहौर का कहना था, हम सबसे पहले पाकिस्तानी और फिर एक कम्युनिटी हैं। पाकिस्तानी होने के नाते हम सब का फर्ज है कि हम अपने मसीही भाइयों बहनों की खुशियों में शरीक हों। मसीही बरादरी के लिए खुशी का त्यौहार है तो तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। चर्चिज में सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। अक़लियती बरादरी को मुस्लिम कम्युनिटी में तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ फराहम किए जाते हैं। दीन इस्लाम ने भी हमें PH जोन 6 इंतजामिया की मुबैना नाअहली। जौहर टाउन फेज 2 की शाहराहों के अतराफ ग्रीन बेल्ट्स पर तजावज़त माफिया का राज। तजावज़ात कायम होने से ग्रीन बेल्ट्स तबाह होने लगी। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि PH जोन 6 इंतजामिया की मुबैना नाअहली जौहर टाउन फेज 2 की शाहराहों के अतराफ ग्रीन बेल्ट्स पर तजावज़त माफिया का राज बरकरार। तजावज़ात कायम होने से ग्रीन बेल्ट्स तबाह होने लगी। आपको खबर दे रहे हैं यहाँ पर PH जोन 6 इंतजामिया की मुबैना नाअहली जौहर टाउन फेज 2 की शाहराहों के अतराफ ग्रीन बेल्ट्स पर तजावज़त माफिया का राज बरकरार। ग्रीन बेल्ट्स पर तजावज़त माफिया का राज बरकरार है। इस वाले से आपको बता रहे हैं कि फेज 2 की शाहराहों के अतराफ ग्रीन बेल्ट्स पर तजावज़त माफिया का राज बरकरार। जौहर टाउन फेज 2 की शाहराहों के अतराफ ग्रीन बेल्ट्स पर तजावज़त माफिया का राज होने से शहरी भी परेशान। इस वाले से मजीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं सलमान शाह। जी सलमान, बताइए कि क्या मामला है। हाँ जी बिल्कुल, PH जोन 6 इंतजामिया की मुबैना नाअहली सामने आई है। जौहर टाउन फेज 2 की शाहराहों के तरफ ग्रीन बेल्ट पर तजावज़ात माफिया ने कब्जा जमा रखा है। तजावज़ात कायम होने से ग्रीन बेल्ट तबाह होने लगी हैं। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह ग्रीन बेल्ट पर स्टॉल लगाकर ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती को तबाह किया जा रहा है। जौहर टाउन फेज 2 की ग्रीन बेल्ट पर गाड़ियां भी पार्क की जाने लगी है। एक तरफ तो लाहौर को ग्रीन बनाने के दावे तो दूसरी जानी मुबैना तौर पर जोन 6 की ग्रीन बेल्ट पर तजावज़ात माफिया का राज PH की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।